أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك اس سے قبل ہم چوتھا سبق الدرس الرابع پڑھ چکے ہیں اور اس میں ہم نے حروف جارہ کے متعلق پڑھا تھا اور ان میں سے بھی 4 حروف جارہ کے متعلق ہم نے پڑھا تھا جو یہاں پر آپ کی سکرین پہ فی، علی، من، الی، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ فی جو ہے یہ میں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی جہاں پر انگریزی میں ہم ان استعمال کرتے ہیں عربی میں اس کے لیے فی کا استعمال ہوتا ہے۔ علی جو ہے اس کے متعلق ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جس کے لیے انگلش میں آن کا یوز ہوتا ہے اس کے لیے عربی میں علی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ من کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس طرح سے انگلش میں فرام کا ورڈ یوز ہوتا ہے اسی طرح سے عربی میں من ہوتا ہے، اس کے معنی بھی سے آتے ہیں۔ اور الا تک، ٹو، یہ ہم نے 4 پڑھے تھے اور اس کے متعلق ہم نے بہت اچھے سے اس کی مشق بھی کی تھی۔ آج ہمارا سبق جو ہے الدرس الخامس، 5th لیسن۔ الدرس کے معنی سبق، الخامس کے معنی پانچواں سبق۔ الدرس الخامس، 5واں سبق۔ اس سبق میں ہم نے ایک نئی چیز سیکھنی ہے اور وہ ہے مضاف اور مضاف الیہ مرکب اضافی۔ 3 چیزوں کی طرف ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ عربی میں جب ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے، جب ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ جوڑا جائے تو عربی میں اسے اضافت کہا جاتا ہے۔ جب ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے، جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں برادرز پین، یعنی اپاسٹراف کاما اور اس کے بعد جو ایس لگاتے ہیں ہم، جسے ہم اپاسٹرافی ایس کہتے ہیں، اس کے لیے عربی میں جو ہے اسے کہتے ہیں مضاف اور مضاف الیہ، یعنی ایک اسم کی جب دوسرے اسم کی طرف نسبت کی جائے اسے ہم اضافت کہتے ہیں، اس نسبت کو اضافت کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں جس اسم کی نسبت کسی اسم کی طرف کی جائے، مثلا یہاں پہ اگر ہم مثال دیکھیں گے، یہاں پہ لکھا ہے کتاب محمدن، کتاب محمدن، کتاب ایک اسم ہے، محمدن دوسرا اسم ہے، کتاب کی نسبت محمد کی طرف ہے۔ تو اب اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے عربی میں مضاف پہلے آتا ہے، یعنی جس کی نسبت کی جائے وہ پہلے آتا ہے اور جس کی طرف کی جائے وہ بعد میں آتا ہے۔ لیکن بقیہ زبانوں میں جیسے ہم اگر انگلش میں کہیں گے تو ہم کہیں گے محمد's بک، اردو میں ہم کہیں گے محمد کی کتاب۔ تو عربی میں جو ہے مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، یعنی مضاف وہ اسم کہلاتا ہے جس کی نسبت دوسرے کی طرف کی جائے، مضاف وہ اسم جس کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے، اور مضاف الیہ وہ اسم جس کی طرف کسی دوسرے اسم کی نسبت کی جائے۔
مضاف وہ اسم جس کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے اور جس اسم کی طرف نسبت ہو اسے ہم مضاف الیہ کہتے ہیں. تو یہ دونوں مل کر پھر بنتے ہیں مرکب اضافی. مرکب اضافی ان کو کہا جاتا ہے، یعنی مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بنتے ہیں. اب مرکب اضافی جو ہے یہ پورا جملہ نہیں ہوتا ہے، یہ ایک فریز ہوتا ہے، کمپاؤنڈ ورڈ کی طرح ہوتا ہے. یہ جیسے کتاب محمدن، محمد's بک، یہ جملے کا ایک حصہ ہے. ہم کہیں گے محمد's book is on the table، کتاب محمدن علی المکتبی. تو اس میں جو ہے یہ دھیان رکھنا ہے کہ ایک اسم ہوتا ہے، اس کی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہو تو اسے ہم اضافت کہتے ہیں. اس آپسی ان کا جو رشتہ ہے، آپسی جو ان کا تعلق ہے، اس کو ہم اضافت کہتے ہیں. اور اضافت میں دو جز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مضاف، دوسرا ہوتا ہے مضاف الیہ. مضاف وہ اسم ہوتا ہے جس کی نسبت کسی دوسرے اسم کی طرف کی جائے، اور مضاف الیہ وہ اسم کہلاتا ہے جس کی طرف دوسرے اسم کی نسبت کی جائے. یہ دونوں مل کر مرکب اضافی بنتے ہیں. دیکھیں کتاب محمدن یہاں پر ہے پہلا ہی جملہ، سعیدن، سعید نے کہا. تھوڑا سا ترجمے کی طرف دھیان دیجئے. آ کے معنی کیا، کتاب کے معنی کتاب، محمدن کے معنی محمد، ہاذا کے معنی یہ، یا یاسر اے یاسر. اب اس میں ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ اس میں جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ محمدن کے نیچے ہم دیکھ رہے ہیں تنوین. ہم نے پڑھا تھا کہ اسم وہ ہوتا ہے اس کے اوپر یا تنوین ہوگی یا الف لام ہوگا. تو یہاں پر دیکھیں محمدن کے نیچے تو تنوین ہے لیکن کتابوں کے اوپر تنوین نہیں ہے. اس میں ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ مضاف جو ہوتا ہے، مضاف یعنی جس کی نسبت دوسرے کی طرف کی جائے اس پر تنوین نہیں آتی ہے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موانع تنوین یعنی تنوین جس کی وجہ سے نہ آئے، وہ تو ہم نے صرف الف لام پڑھا ہے. تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اضافت جو ہے یعنی مضاف بننا جو ہے یہ بھی الف لام کو روکتا ہے، اس کی وجہ سے بھی پھر اسم پر الف لام نہیں آتا ہے. جیسے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں پوری مثالوں میں ایسے ہی آئے گا، اکتاب محمدن ھذا، سعید، سعید نے کہا، کے معنی کیا، کتاب محمدن، محمد کی کتاب. دیکھیں عربی میں الٹا ہے، یا انگریزی میں الٹا معنی عربی کے حساب سے، محمدن بعد میں کتابن پہلے. تو کتاب محمدن جب ان کی اضافت ہو گئی تو ترجمہ ہوگا محمد کی کتاب، محمد کی کتاب، محمد's بک، محمد's بک. ھذا کے معنی یہ، یا یاسر اے یاسر. کتاب محمد، کے معنی کیا، کتاب محمد، محمد کی کتاب، ھذا یہ، یا یاسر اے یاسر، اے یاسر کیا یہ محمد کی کتاب ہے. کتاب محمدن کیا محمد کی کتاب، ھذا یہ، یا یاسر اے یاسر. لفظی ترجمہ اور جب ملا کر کریں گے، اے یاسر، اے یاسر کیا یہ محمد کی کتاب ہے، اے یاسر کیا یہ محمد کی کتاب ہے. یاسرن، یاسر نے کہا، لا نہیں، نو، ھذا کتاب حامدن، یہ حامد کی کتاب ہے. تو اب اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتاب پھر اسی طرح سے ہے، اس کے اوپر تنوین نہیں ہے لیکن حامدن کے نیچے تنوین ہے. لا ھذا کتاب حامدن، نہیں یہ حامد کی کتاب ہے. تو اب اگر ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ کتاب کے اوپر تنوین کیوں نہیں ہے، تو ہم جواب دیں گے کہ کتاب مضاف ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر تنوین نہیں ہے. سعیدن، سعید نے کہا، این کتاب محمدن، این کے معنی ہم پڑھ چکے ہیں، کتاب محمدن، محمد کی کتاب،
आईना किताब मुहम्मदिन, मुहम्मद की किताब कहाँ है। यासिरुन, यासिर ने कहा हुआ अलल मकतबी हुनाका, वो अलल मकतबी मेज पर है, हुनाका वहां, वो वहां मेज पर है। डियर, THERE, वो वहां मेज पर है, वो वहां मेज पर है। सईदुन, सईद ने कहा ऐन दफ्तर अम्मारिन, अम्मार का रजिस्टर कहाँ है, या अम्मार की कॉपी कहाँ है। या अम्मारिन नाम है, दफ्तर इसकी निस्बत है अम्मार उनकी तरफ। ऐन दफ्तर अम्मारिन, ऐन दफ्तर अम्मारिन, अम्मार की कॉपी कहाँ है। हुआ अला मकतबिल मुदर्रिसी, हुआ अला मकतबिल मुदर्रिसी, वो उस्ताद के टेबल पर है, वो उस्ताद के टेबल पर है, वो उस्ताद की मेज पर है। तो यहां पर ऊपर जो हमने मिसालें पढ़ी, किताब मुहम्मदिन, इस पे दोनों इसम ऐसे थे कि जिनके ऊपर दोनों में से एक पर भी अलिफ लाम नहीं था। लेकिन जो अब हम जुमला पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर दूसरे जुज पर अलिफ लाम है, दूसरे इसम पर अलिफ लाम है। तो गोया हमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि मुजाफ इलै जो है उस पर अलिफ लाम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, उस पर दोनों सूरतें हो सकती हैं। यानी अगर मुजाफ मुजाफ जो है उस पर अलिफ लाम और तनवीन दोनों नहीं आएंगे, और मुजाफ इलै जो है यानी जिसकी तरफ निस्बत हो उसमें दोनों आ सकते हैं, यानी अलिफ लाम भी आ सकता है और तनवीन भी आ सकती है। एक साथ दोनों नहीं आएंगे, या तो अलिफ लाम होगा या तनवीन होगी। सईदुन, सईद ने कहा कलम मन हाजा या अलीयु, कलम मन, मन के माना कौन, मन के माना कौन, जिस तरह से इंग्लिश में हु होता है, हु, कलम मन, हु। लेकिन अब यहां पर कलम की निस्बत आ गई मन की तरफ, कलमों की निस्बत हो गई मन की तरफ। तो इंग्लिश में जिस तरह से हुज बन जाता है, WHOSE, हुज, कलम मन, किसका कलम, हाजा ये, या अली ए अली, कलम मन हाजा ये किसका कलम है, या अली ए अली, कलम मन हाजा अली, या अली अली ये किसका कलम है, अली ये किसका कलम है। Whose pen is this? अली, whose pen is this? अलीयुन, अली ने कहा, अलीयुन, अली ने कहा हादा कलमुल मुदर्रिसी, ये उस्ताद का कलम है। दिस इज टीचर्स पेन, दिस इज टीचर्स पेन। तो इसमें जो है कलम मन, कलम मुजाफ है और मन मुजाफ इलै, यानी निस्बत है इसकी। हाजा ये इसमें इशारा है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। हाजा कलमुल मुदर्रिसी, ये उस्ताद का कलम है। सईदुन, सईद ने कहा आईना हकीबतुल मुदर्रिसी, हकीबतुन के माना आते हैं बैग। आईना हकीबतुल मुदर्रिसी, सईद ने कहा उस्ताद का बैग कहाँ है, उस्ताद का बैग कहाँ है। आईने के माना कहाँ, हकीबतुन के माना बैग, अल मुदर्रिसी के माना उस्ताद। अब अल मुदर्रिसी के नीचे जेर है, क्यों है जेर, क्योंकि ये मुजाफ इलै है, और मुजाफ इलै पर हमेशा जो है जेर आती है। हिया तहत अलीयुन, अली ने कहा हिया तहतल मकतबी, वो मेज के नीचे है। आईना हकीबतुल मुदर्रिसी, उस्ताद का बैग कहाँ है। हिया तहतल मकतबी, वो मेज के नीचे है। तो फिर से हम एक मर्तबा इसको दोहराएंगे। सबसे पहले हम ये याद रखेंगे कि जब एक इसम की निस्बत दूसरे इसम की तरफ की जाए तो उस निस्बत को इजाफत कहा जाता है। एक इसम की निस्बत दूसरे इसम की तरफ की जाए
اسے اضافت کہا جاتا ہے۔ جس اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے، یعنی دو اسم ہوں گے، ایک کی نسبت ہوگی دوسرے کی طرف، تو جس اسم کی نسبت دوسرے کی طرف ہو اس کو ہم کہتے ہیں مضاف، اور جس کی طرف نسبت ہو اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ۔ مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر مرکب اضافی بنتے ہیں، اور مرکب اضافی کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ الٹا ہوتا ہے، یعنی پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ ہوگا، اس کے بعد مضاف کا ترجمہ ہوگا۔ جیسے ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اکتاب محمد ھذا، تو کیا محمد کی کتاب ہے یہ، یا یاسر اے یاسر، تو محمد بعد میں ہے اور کتاب پہلے ہے، کتاب پہلے ہے، تو ترجمہ جو ہم پہلے محمد کا کریں گے اور اس کے بعد کتابوں کا ترجمہ کریں گے۔ اکتاب محمد ھذا یا یاسر، اے یاسر کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ یاسر، یاسر نے کہا، لا نہیں، ھذا کتاب حامد، یہ حامد کی کتاب ہے۔ سعید، سعید نے کہا، آئین کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ یاسر، یاسر نے کہا، هو علی المکتب هناک، وہ وہاں میز پر ہے۔ سعید، سعید نے کہا، این دفتر عمار، عمار کا رجسٹر، عمار کی کاپی کہاں ہے؟ یاسر، یاسر نے کہا، ہوا علی مکتب المدرس، وہ استاد کے میز پر ہے۔ سعید، سعید نے کہا، قلم من ھذا یا علی، اے علی یہ کس کا قلم ہے؟ قلم من ھذا، یہ کس کا قلم ہے اے علی؟ علی، علی نے کہا، ھذا قلم المدرس، یہ استاد کا قلم ہے۔ سعید، سعید نے کہا، این حقیبۃ المدرس، استاد کا بیگ کہاں ہے؟ علی، علی نے کہا، ہی تحت المکتب، وہ میز کے نیچے ہے۔ تو یہیں تک ہمارا جو ہے سبق، اس میں مضاف اور مضاف الیہ کے تعلق سے جو باتیں آئیں ان کو ہم ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ یاد رکھیں گے کہ مضاف پر جو ہے تنوین نہیں آتی ہے، نہ ہی اس کے اوپر الف لام آتا ہے، اور مضاف الیہ جو ہے اس کے اوپر تنوین بھی آتی ہے اور الف لام بھی آتا ہے، جیسا کہ ہم یہاں مثالوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کی ہم جو ہے آگے تمرینیں ہیں جو اس کی مشقیں ہیں ان کی طرف ہم دھیان دیں گے، تو میں آپ کے مائکس بھی آن کر رہا ہوں تاکہ ہم مل کر ان کی مشق کریں گے۔ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کے مائک کھل رہے ہیں؟ جی کھل گئی۔ جی، تو اسی طرح سے ایک سمجھ آیا آپ کو اس میں مضاف اور مضاف الیہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر اگر آپ ذرا اس کو ریپیٹ کریں گے، میں جائن تھوڑا لیٹ ہو، اب فون میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، تو اگر آپ ذرا اس کو ریپیٹ کریں گے پلیز سر۔ دیکھیں اس میں سمپل سی تین چیزیں ہم نے اس میں بیان کی ہیں کہ ایک اسم کی نسبت اگر دوسرے اسم کی طرف ہو، جیسے پہلی مثال آپ دیکھ لیجئے، کتاب محمد، دو اسم ہیں ہمارے پاس، ایک ہے کتاب، ایک ہے محمد۔ کتاب کی نسبت محمد کی طرف ہے، جس طرح سے ہم اردو میں اب کہیں گے محمد کی کتاب، تو کتاب کی نسبت ہو گئی محمد کی طرف، اس نسبت کو ہم عربی میں کہتے ہیں اضافت۔ پھر اس کے بعد اس کے دو اسم ہوتے ہیں، جیسے اس میں آپ مثال میں دیکھ لیجئے، کتاب اور محمد، دو اسم ہیں، اب ایک اسم کی نسبت ہے دوسرے کی طرف،
जिस इसम की निस्बत दूसरे की तरफ की गई इसको कहा जाता है मुजाफ। जिस इसम की निस्बत दूसरे इसम की तरफ हो उसको कहते हैं हम मुजाफ। और जिसकी तरफ निस्बत हो, जैसे मोहम्मद की तरफ किताब की निस्बत है, इसको हम कहते हैं मुजाफ इलै। मुजाफ और मुजाफ इलै दोनों जब मिलते हैं तो इनको कहा जाता है मुरक्कब इजाफी। मुजाफ और मुजाफ इलै दोनों मिलकर मुरक्कब इजाफी बनते हैं। मुरक्कब इजाफी में तर्जुमा जो है वो उल्टा होता है, यानी अरबी के हिसाब से उल्टा होता है। मसलन मुहम्मदुन बाद में है, किताबु पहले है, तो मोहम्मद की किताब, दूसरी मिसाल में हामिद की किताब, तीसरी मिसाल में मोहम्मद की किताब। तो ये जो है इनमें तर्जुमा जो होता है उल्टा होता है। उसके बाद एक बात यह है कि मुजाफ जो होता है, यानी जिसकी निस्बत दूसरे इसम की तरफ हो, उस पर न तो अलिफ्लाम आता है और ना ही तनवीन आती है। और जो मुजाफ इलै है उसके ऊपर दोनों चीजें आती हैं। मुजाफ इलै जो है उस पर तनवीन भी आती है और उस पर अलिफ्लाम भी दाखिल हो सकता है। तो मुजाफ और मुजाफ इलै दोनों मिलकर मुरक्कब इजाफी बनते हैं। मुजाफ पर अलिफ्लाम और तनवीन नहीं आती, मुजाफ इलै पर दोनों चीजें आती हैं। और मुजाफ इलै जो है ये हमेशा मजरूर होता है, यानी अक्सर की बात जो होती है इसमें ये मजरूर होता है, इसके नीचे जेर होती है, चाहे तनवीन हो। अगर अलिफ्लाम नहीं होगा तो तनवीन होगी, और अगर अलिफ्लाम होगा तो फिर तनवीन नहीं होगी, यानी हमेशा इसके नीचे जेर ही होगी मुजाफ इलै के नीचे। अब हम आगे तमारीन, एक्सरसाइजेस। अजीब अनिल अस्इलतिल आतियति, नीचे दिए गए सवालों के जवाब दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है आइना किताब मुहम्मदिन। मुजफ्फर साहब आप इसका तर्जुमा भी करेंगे और जवाब भी देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आइना किताब मुहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है? किताब मुहम्मदिन अलल मकतबी, मोहम्मद जी की किताब मेज पर है। जी इसमें आइना कहाँ, किताब मुजाफ और मुहम्मदिन मुजाफ इलै है। जी। और किताब मुहम्मदिन दोनों मिलकर क्या बनेंगे? मुरक्कब इजाफी, जी मुजाफ मुरक्कब मुजाफ इजाफी। इलै मिलकर जी जी मुरक्कब इजाफी। इजाफी। उसके बाद आगे चलेंगे। उमर गाजी, उमर गाजी साहब दूसरी मिसाल। अरबी भी पढ़ें, तर्जुमा भी करें और जवाब भी दें अरबी में ही। जी उमर गाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आईना किताबु अम्मारिन, जी अम्मार की किताब कहाँ है? जी हिया तहतल मकतबी, वो मेज के नीचे है। अच्छा, हिया आपने पढ़ा, हिया क्यों पढ़ा आपने? हिया जी किताब की हम बात कर रहे हैं ना, किताब की, तो किताब मुज़क्कर है या मुअन्नस? किताब मुअन्नस है, इसके साथ हिया लगेगा। लेकिन ये उर्दू में मुअन्नस है, अरबी के हिसाब से ये मुज़क्कर है। अच्छा जी, तो हम हुआ ही इस्तेमाल करेंगे। दोहराएं जरा इसको। अच्छा। आईना किताबु अम्मारिन, अम्मार की किताब कहाँ है? हुआ जी तहतल मकतबी, वो मेज के नीचे है। जी। अब आपने जो है किताबु पढ़ा है ना, जी। इसके ऊपर आपने तनवीन क्यों नहीं लगाई? आईना किताबु, क्योंकि ये मुजाफ है। जी मुजाफ है और मुजाफ के ऊपर तनवीन नहीं आती है, ठीक है। नहीं यार।
आबिद नाइक साहब, आबिद नाइक साहब थोड़ा सा जल्दी करें। अल्ताफ शेख साहब, मिसाल नंबर 3। अल्ताफ शेख साहब माइक अनम्यूट करें। अरसलान मलिक साहब, मिसाल नंबर 3। सर बुशुल बात किया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ इकबाल नाइक साहब, अइन हकीबतुल मुदर्रसिन उधर मुद- मुदर्रिसिन मुदर्रिसिन या सी, एक जेर या तनवीन? मुदर्रिस से क्यों एक ही जेर क्यों? क्योंकि आइन हकीबतुल जो है यशु ठीक ठीक शो उन पे क्यों? पढ़ा है उस कायदे फितरती पैद किन के आता है असल में आज को मोहम्मद basically rutu थोड़ा मातम दरी मजन ये दोंदन दोन मैं को ये से के पैसो रिसा का साहब देखो, अल मुदर्रिसी हकीबतुन की निस्बत है अल मुदर्रिस की तरफ। जी हकीबतुल मुदर्रिस ये दोनों बन गए आपस में मुरक्कब इजाफी। तब इजाफ मुरक्कब इजाफी के दूसरे जुज पर जेर आता है, वो आपने दिया। अल मुदर्रिसी ही हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि उसके ऊपर जो है ये हकीबतुल अलिफ्लाम आ गया, अल मुदर्रिस के ऊपर अलिफ्लाम आ गया। जब अलिफ्लाम आ गया अलिफ्लाम आ गया तो फिर हम दो जेर नहीं लगा सकते। ठीक ये तर्जुमा करें। उस्ताद का बैग कहाँ है बस्ता कहाँ है जी, जवाब हिया ताहतल मकतबी जी, वो मेज के नीचे है तहतल मकतबी, ये दोनों आपस में क्या है? इनका आपस में क्या रिश्ता है? मुजाफ इलाई मुजाफ और मुजाफ इलई दोनों मिलकर क्या बनेंगे? ये मुरक्कब इजाफी मुरक्कब इजाफी। इजाफ मुरक्कब इजाफी जो होता है ये जुमला नहीं होता है, बल्कि जुमले का एक हिस्सा बनता सा है, होता है जैसे कि हम देख रहे हैं। ठीक है, जी उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2, तमरीन तमरीन सानी, अज़िफिल कलिमतल ऊला इला सानिया। इसमें जो है हमारे पास दो कलिमे, ध्यान दीजिएगा, इसमें हमारे पास दो कलिमे हैं। दो कलिमे मीन्स हमारे पास दो इसम हैं। इनका क्या करना है, हमने एक इसम को दूसरे इसम की तरफ निस्बत करके हमने मुरक्कब इजाफी बनाना है। पहली मिसाल इन्होंने दी है किताबुन मुहम्मदुन, फिर किताबु मुहम्मदिन। ठीक है, इसी तरह से ये जो मिसालें हैं ये हमने देनी है। तो फिर से हम शुरू करेंगे। सभी तैयार हैं अपनी अपनी जगह? जिसको समझ ना आए वो भी माइक अनम्यूट करके कम से कम ये बताएं कि समझ नहीं आया है, ताकि दोबारा से बात क्लियर हो जाए। निशात अहमद साहब शुरू करें आप। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले ये बताएं, आइना क्लियर हुआ इसका कंसेप्ट मुजाफर मुजाफिर का? जी तकरीबन तकरीबन हो गया क्लियर, लेकिन अब थोड़ा सा माशक के बाद हाँ, और माशके में तो हो जाएगा इंशाल्लाह। जी आइना
आइना किताब मुहम्मदिन। नहीं, दूसरी एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं, किताबुन मुहम्मदुन, सिर्फ हमने बनाना है इसका, हमने कोई इसमें ऐड नहीं करना है। ये जो दो कलमे दिए गए हैं इन्हीं को हमने मुजाफ और मुजाफ इलैह बनाना है। अच्छा, तो इस तरह से भी तो बन गए ना। हाँ हाँ, इस तरह से भी बन सकता है। सवालिया अंदाज में है ये, जी इस तरह से भी बन सकते हैं। जी जी इसमें किताबो आ गए ना मुजाफ, मुहम्मदिन जी ये आ गया मुजाफ इलैह। तो जी अगर हम ऐसे भी बोल सकते हैं आईना किताबु मुहम्मदिन, तो मुरक्कबे इजाफी दोनों हो गए आपस में, कौन कौन? किताब और मोहम्मद मोहम्मद, जी ये क्या बन गए? मुरक्कबे इजाफी। इजाफी। इसमें आप बता सकते हैं कि किताबों के ऊपर आपने तनवीन नहीं लगाई, क्यों नहीं लगाई, जबकि इसके जी, ऊपर अलिफ लाम भी नहीं है? क्योंकि ये इसमें मुजाफ मुजाफ में आता है, ये आ गया मुजाफ, मुजाफ में मुजाफ में तनवीन नहीं आती है, और अलिफ लाम भी नहीं आता है। अलिफ लाम भी नहीं आता है। मुजाफ इलैह में अलिफ लाम आ सकता है, अगर अलिफ लाम है तो फिर इसमें जेर आएगी लास्ट में। जी, एक जेर आएगी, और अलिफ लाम जी, नहीं है तो दो जेर आएगी, तनवीन आएगी। दो, हाँ फिर दो जेर आएंगी। जी चलिए, खुद ही कोई ताहिर साहब हैं? ताहिर अशरफ वानी साहब। जाहिद भट्ट साहब। यासिर अहमद साहब। फीमेल पार्टिसिपेंट में से कोई चले? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बनाइए इसका कलमु मुरक्कब। कलमु जी जी, हामिदिन कलमु या मिफ्ता कलम? कलमु जी, हामिदिन तर्जुमा भी, तर्जुमा भी करें और ये भी बताएं मुजाफ कौन है, मुजाफ इलैह कौन है। कलमु मुजाफे और हामिदिन मुजाफे इलैह। जी, तर्जुमा। हामिद हामिद का कलम। जी मिफ, मिफ्ताहु मिफ्ताहुल बैती जी घर की चाबी। जी बैतु अब्बास अब्बासिन इसका बताएं आप मुजाफ और मुजाफ इलैह। मिफ्ताहु मुजाफ हम्म, बैती मुजाफ इलैह। जी, अल बैती मुजाफ इलैह। जी, उसके बाद कोई और अगली लाइन। बैतु अब्बासिन, जी अब्बास का घर, इसमें बैतुन मुजाफ है और अब्बास मुजाफ इलैह। जी दुकान ताजिरी, जी कान के माने होते हैं दुकान, ठीक है। जी जी अच्छा, ताजिर की दुकान, जी इसमें दुकान हो गया मुजाफ, अत्ताजिर हो गया मुजाफ इलैह। जी। शाफिया नाइक साहिबा। अस्सलामुअलैकुम। गुरफत वालेकुम। गुरफतु अलीयिन, अली का जी कमरा। गुरफतु जी मुजाफ अलीयिन मुजाफ इलैह। जी बै- बैतुल मुहंदिसी, जी इंजीनियर का घर।
جی बैतुन मुजाफ मुहंदिसी अल मुहंदिसी मुजाफ इलैह अल मुहंदिसी के नीचे तनवीन क्यों नहीं? क्योंकि ये मुजाफ इलैह है और मुजाफ इसके साथ इलैह, अलिफ लाम भी मुजाफ लगा है, अलिफ लाम अलिफ लगा है, इस वजह से तनवीन नहीं आएगी। नहीं आई है। जी आगे। दफ्तरु सईदिन, सईद की कॉपी। हम्म इस्मुल वलदी, लड़के का हम्म नाम। दफ्तरु ठीक है। मुजाफ सईदिन मुजाफ इलैह, जी इस्मु मुजाफ अल वलदी मुजाफ इलैह, जी दोनों मिलकर मुरक्कब इजाफी बनते हैं। कोई है इकरा बानो के नाम से। मोहम्मद ताजीम। जी माइक अनम्यूट करें। जी मुजफ्फर साहब। जी मिन इस्मुन नाम, अल वलद लड़का, ये इस्मुल हो गया। वलदी लड़के का नाम। मिंदिलुन रुमाल, यासिरुन यासिर, मिंदिलु यासिरिन यासिर का रुमाल। मिंदिल मुजाफ, यासिरुन मुजाफ इलैह और मिलकर मुरक्कब इजाफी। किताबुन किताब, अल्लाहु अल्लाह, किताबुल्लाही अल्लाह की किताब। इसमें किताब मुजाफ और अल्लाह मुजाफ इलैह और मिलकर मुरक्कब इजाफी। कमीसुन कमीस, अम्मारुन अम्मार, कमीसु अम्मारिन अम्मार की कमीस। कमीस मुजाफ, अम्मार मुजाफ इलैह और मिलकर मुरक्कब इजाफी। बिन्तुन लड़की, अत्तबीबु डॉक्टर, बिन्तु तबीबी डॉक्टर की लड़की। बिन्तुन मुजाफ और तबीबुन मुजाफ इलैह मिलकर मुरक्कब इजाफी। पढ़ूं जी आगे भी नहीं? इसमें शौकत अली साहब। तौसीफ वानी साहब। जी होल्ड पे हैं अभी फिलहाल। यासिर अहमद साहब। जी अरीबा के नाम से जो है पढ़े, अरीबा। खुद ही पढ़े कोई भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरीरो खालिदिन, खालिद की चारपाई। जी सरीरो मुजाफ, खालिदिन मुजाफ इलैह, दोनों मिलकर ये मुरक्कब इजाफी बनते हैं। जी मिफ्ताहुल सैयारतिन, गाड़ी फिर की से चाबी। रिपीट करें। मिफ्ताहुल सैयारतिन, नहीं, पहले जो यहाँ पे दिया हो उसको पढ़े आप। ठीक है पढ़े। मिफ्ताहुन और मिफ्ताहु अस्सय्यारतु। हाँ जी मिफ्ताहु, ये अच्छा ये अलग से पढ़ना है। अस्सय्यारत, मिफ्ताहु अस्सय्यारतिन, गाड़ी की जी चाबी। मिफ्ताहु जी मुजाफ और सय्यारतिन मुजाफ इलैह, दोनों मिलकर मुरक्कब इजाफी बनते हैं।
صحیح تلفظ کیا ہوگا اس کا؟ مفتاح السیارتن یا مفتاح السیارتن کیا ہوگا؟ مفتاح السیارتن. مفتاح السیارتن یا تی؟ سیارت. کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ الف لام ہے. الف لام ہے، تو یہ ابھی تک بھی تھا اس پہ. ہاں سوری. جی چلے آگے ذرا آپ ہی پڑھیں. تیسری تمرین جو ہے اقرا وکتب مع ضبط اواخر الکلمات، ریڈ اینڈ رائٹ ود دا کریکٹ اینڈنگ. پڑھیں ذرا آپ. باب المدرستی. نہیں، مدرستی. جی مدرسے کا دروازہ. جی. مضاف کون سا ہے؟ مضاف الیہ کون سا ہے؟ مرکب اضافی کیا ہے؟ تنوین کس مضاف پر ہے، کیوں نہیں ہے؟ مضاف باب ہے. جی جی باب مضاف ہے. مدرستی مضاف الیہ ہے. المدرستی مضاف الیہ ہے، اور دونوں مل کر مرکب اضافی بنتے ہیں. جی دونوں مل کر مرکب اضافی. اچھا، اضافی جی. المدرستی کے نیچے آپ نے تنوین نہیں لگائی ہے نا؟ جی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ الف لام ہے. الف لام ہے. بابو پر بھی آپ نے تنوین نہیں لگائی نا؟ جی اس پر الف لام بھی نہیں ہے. کیوں نہیں لگائی آپ نے تنوین؟ کیونکہ یہ مضاف ہے، اور مضاف کے ساتھ نہ مضاف ہے، الف لام لگتا ہے. مضاف پر بھی تنوین نہیں آتی ہے نا؟ نہ تنوین لگتی اور نہ الف لام لگتا ہے. جی جی بالکل صحیح، آپ کا جواب صحیح ہے. فرحت عباس صاحب. فرحت عباس. بشارت علی. بشارت علی صاحب ہیں؟ یس سر. جی پڑھیں آپ. ہیما مندیل کا مجھے معنی پتہ نہیں. آگے والا پڑھیں، حمارون والا پڑھیں آپ. مانا تو ہم پوچھ ہی ہیما رہے ہیں فی الحال. ہمار الرجل. پھر سے. ہمار الرجل. رجل. رجلو یا لی یا لا؟ رجلی. کیوں لی کیوں، لا اور لو کیوں نہیں؟ اس میں جو لام الف لام پیچھے سے ہے. الف لام ہے، اس وجہ سے اس پر تنوین نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. نہیں نہیں ہاں سر. مضاف اور مضاف الیہ کچھ بتا سکتے ہیں آپ اس میں کون مضاف ہے کون مضاف الیہ؟ ہمار مضاف اور رجل مضاف الیہ، دونوں مل کر الرجل. دونوں الرجل مل کر یہ کیا بولتے ہیں، بھول گیا تب تک. مضاف ایک منٹ. الیہ، مضاف مرکب الیہ. اضافی. مرکب اضافی. ہاں اضافی. مرکب اضافی ٹھیک ہے. مبین اختر ہیں؟ یہ چھُ مشکل جناب چھِ یتھے یمن چھِ پران یِم چھِ دۄہس پران. آپ اپنا مائک آف کر دیجیے ذرا. مبین اختر. نصیر ملک، نثار احمد، کوئی بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیتون گھر کوئی اور حامد. جس نے اب تک نہیں پڑھا ہے، کوئی اور جس نے اب تک نہیں پڑھا ہے وہ سپاہی سامنے آ جائے میدان میں. تزکیہ باہر ہے ابھی، اس کو بھی بولا.
बैतु जी हामिदिन, हामिद का जी घर। बैतु मुजाफ, हामिदिन मुजाफ इलैया, तो दोनों मिला के मुरक्कबी मुरक्कबे इजाफी। इजाफी। जी उसके बाद सयारतुल मुदीरी, जी मुदीर यानी उस्ताद की गाड़ी। सयारतु प्रिंसिपल। से आगे मुजाफ, अल मुदीरी आगे मुजाफ इलैह, मुरक्कब इजाफी बन जाता। जी अब हम थोड़ा सा किताब से हटके करेंगे, ध्यान रखिए आप। क्या लिखा है मैंने? साजिद की साजिद की दुकान। दुकान। बनाएं इसका आप। दुकान साजिदी। दुकानुस साजिदी, ठीक है। अलिफ्लाम नाम के ऊपर आता है? जी प्रॉपर नाउन पे अलिफ्लाम आता है? अलिफ लम नहीं, प्रॉपर नाउन पे नहीं आता है। आपने शायद लगा लिया है। अच्छा, दुकान साजिदी, साजिदीन। दुकानु साजिदीन। जी। जी दुकानु साजिदीन, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। जी साजिद की दुकान कहाँ है? आईना दुकान साजिदिन। आई ना दुकानु साजिदीन। जी ठीक है। उसके बाद आपने जी कलम माजिद, माजिद, माजिद का कलमु कलम। माजिदिन। माजिदिन। जी माजिद का कलम वहां है। कलम माजिदिन हुनाका। कलमु माजिदिन हुनाका। हुनाका। जी अब मैं इसके शुरू में एक लफ्ज लगा देता हूँ। कलम कलम माजिदिन हुनाका। माजिदिन हुनाका। अकलमु माजिदिन हुनाका। 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 जी ठीक है। हम कहेंगे उस्ताद का कमरा। जी गुरफतु उस्तादी, गुरफतुल मुदी, गुरफत, गुरफतु मुदीरी। गुरफतु मुदीरी क्यों लगाया आपने? मुदीरी, मुदीरिन गुरफतु क्यों नहीं मुदीरिन। लगाया? गुरफतुल मुदीरी। गुरफत, यस सर। उस्ताद किसका तर्जुमा, मुदीर किसका तर्जुमा कर रहे हैं आप? मुदीर उस्ताद का सर। उस्ताद का मुदर्रिस आएगा। ठीक है। मुदीर का माने हो गया प्रिंसिपल। जी सॉरी। जी जल्दी जल्दी थोड़ा बनाए इसका।
استاد का कमरा साफ सुथरा है। स्क्रीन साफ आ रही है आपको? गुरफतु मुदीरिन नजीफुन। अगर नजीफुन आप पढ़ेंगे तो मैं इसको गलत कहूंगा। नजीफु नजीफु पढ़ेंगे तब भी गलत ही कहूंगा। जी नेक्स्ट कोई और? ठीक ठीक क्वेश्चन जी चले। गुरफतुल गुरफतुल मुदर्रिसी नजीफतुन। नजीफतुन। जी गुरफतुल मुदर्रिसी नजीफतुन। इसमें आप एक कायदा समझे। आप एक कायदा आपको मैं और समझाने की कोशिश करता हूं। हमने पीछे पढ़ा था कि जुमले जो होते हैं उसके दो जुज होते हैं, पढ़ा था ना हमने, मुब्तदा और खबर। जी जी अब हमने क्या पढ़ा? गुरफतुल मुदर्रिसी है ना, जी नजीफतुन। जी गुरफतुल मुदर्रिसी नजीफतुन, ये हमने पढ़ा, ठीक है। जी इसमें देखो गुरफतुन और अल मुदर्रिस, ये दो मिलकर क्या है? गुरफतुल मुदर्रिस। गुरफतुल मुजाफ है, अल मुदर्रिस मुब्तदा। मुजाफ इलैह। गुरफतुल मुजाफ है और अल मुदर्रिस क्या है? मुजाफ इलैह, है ना। समझ रहे हैं आप? मुजाफ और जी मुजाफ इलैह दोनों मिलकर ये क्या बन गए? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी। इजाफी। गुरफतुन और अल मुदर्रिस ये बन गए मुरक्कब इजाफी। जब मुब्तदा मुरक्कब इजाफी हो, बात समझ रहे हैं आप? जब मुब्तदा मुरक्कब इजाफी हो इजाफी तो हो खबर जो है, खबर मुजाफ के हिसाब से आती है, अकॉर्डिंग टू मुजाफ। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल जी सर। बिल्कुल। जी। जी 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 गुरफतुन क्या है? ये मुजाफ है। मुजाफ है। तो नजीफतुन जो खबर इसके अकॉर्डिंग आ गई, मुजाफ के अकॉर्डिंग आ गई। बात आई समझ में? जी बिल्कुल। है। अब अगर मैं बिल्कुल। लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखता हूं कमरे का दरवाजा, कमरे का दरवाजा खुला है, लिखा मैंने। जी जी। इसका बनाए अब आप कोई। बाबुल गुरफती मफ्तूहुन। मफ्तूहुन क्या आ गया? मफ्तूहुन। मफ्तूहुन। जी क्या बनाया आपने? बाबुल गुरफती मफ्तूहुन। बाबुल गुरफती मफ्तूहुन। जी इसमें क्या है? देखो बाबुल और अल गुरफती दो जुज है ना। बाब अलग इसम है, अल गुरफती अलग इसम है, दोनों मिलकर क्या बन गई? मुरक्कब इजाफी। इजाफी, मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी बनने के बाद ये क्या बन गए? मुब्तदा। क्या बन गए? मुब्तदा। 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 अब खबर जो इसकी है मफ्तूहुन, ये किसके अकॉर्डिंग आ गई? मुजाफ बाबुन के, मुजाफ के। बाबू के अकॉर्डिंग आ गई, ठीक है। जी। अगर हम इसकी जगह बाबू की जगह नाफिजतुन लगाएंगे, जिसके माना आते हैं खिड़की, नाफिजतुल गुरफती, तो खबर क्या आएगी? मफ्तूहतुन। मफ्तूहा। मफ्तूहतुन। मफ्तूहतुन तो खबर मुअन्नस हो जाएगी। तो क्या कायदा समझा हमने? कि अगर मुजाफ और मुजाफ इलैहि, मुरक्कब इजाफी अगर मुब्तदा हो तो खबर किसके हिसाब से आएगी? मुजाफ इलैहि के या मुजाफ के? मुजाफ के अकॉर्डिंग, के हिसाब से आएगी। मुजाफ के अकॉर्डिंग। जी। तो
मुरक्कब इजाफी के सिलसिले में एक मरतबा हम फिर से दोहराते हैं, एक इसम की निस्बत दूसरे इसम की तरफ हो उस निस्बत को इजाफत कहा जाता है, जिसकी निस्बत दूसरे इसम की तरफ की जाए उसको मुजाफ, और जिसकी तरफ निस्बत की जाए उसको मुजाफ इलै कहा जाता है। दोनों मिलकर मुरक्कब इजाफी बनते हैं। मुरक्कब इजाफी में मुजाफ का तर्जुमा बाद में और मुजाफ इलै का तर्जुमा पहले होता है। जैसे हमने पढ़ा कलमुल मुदर्रिसी, उस्ताद का कलम, टीचर्स पेन। एक रूल हमने इसका ये याद रखना है, मुजाफ पर अलिफ्लाम और तनवीन नहीं आती है, और मुजाफ इलै पर अलिफ्लाम भी आता है और तनवीन भी आ सकती है। उसके बाद मुजाफ और मुजाफ इलै मुरक्कब इजाफी अगर मुब्तदा बने, मुरक्कब इजाफी अगर मुब्तदा बने तो खबर जो है ये मुजाफ के हिसाब से लाई जाएगी। तो ये इसका मुख्तसर सा कायदा और मुख्तसर सी कुछ चीजें थी मुजाफ और मुजाफ इलै के हवाले से। तो उम्मीद है कि आप ये चीजें अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इनकी आप अच्छे से मश्क भी करेंगे। तो हमारा यहाँ तक सबक आज का जो है यहीं पे हम इसको ख़त्म करते हैं। 3 तमरीन हमारी हैं, तो इसको आप अच्छी तरह से इनको फिर से दोहरा लें, मश्क करें, और अगर कहीं पे कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो हमें फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं। तो अगर किसी का कोई सवाल हो इसके मुतालिक, मुजाफ और मुजाफ इलै के मुतालिक, या इससे कबल जो हमारी तमरीन और हमारे दुरूस जो गुजर चुके हैं, क्योंकि आप इम्तिहान की तैयारी भी कर रहे हैं, किसी को कोई इश्काल कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी हमसे पूछ सकता है। जी मोहतरम, ये सवाल एक है ये कि अगर ये जो अभी आपने फरमाया ना कि मुजाफ इलै मिलकर अगर मुब्तदा होंगे तो जो खबर होती है वो मुजाफ के अकॉर्डिंग होती है जी। अगर इसके अलावा हटकर हो तो फिर उसमें खबर और मुब्तदा जो है वो किस हिसाब से आते हैं, मतलब मुजाफ इलै से हटके और हो कोई और, तो वहाँ हम खबर और मुब्तदा जो है उसके लिए फिर क्या फार्मूला है सर? उसके लिए खबर मुब्तदा मुज़क्कर होगा तो खबर भी मुज़क्कर होगी। जैसे हाजा रजुलुन हम पढ़ते हैं, हाजा को हम मुब्तदा बनाएंगे, रजुलुन खबर, हाजिही इम्राअतुन। समझ रहे हैं आप? जी 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 जी। मतलब फिर वही जो फार्मूला है, मतलब मुज़क्कर होगा मुब्तदा तो मुअन्नस मुज़क्कर ही उसकी खबर होगी, अगर मुअन्नस होगा मुब्तदा तो खबर भी उसी के हिसाब से मुअन्नस ही आएगी फिर, है? जी जी। इसमें कुछ और कवायद भी हैं, वो आएंगे इंशाल्लाह, अपने वक्त पे आ जाएंगे। वो भी हमने पढ़े नहीं है, इसलिए मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। वो मतलब यहाँ पे वो तनवीन वगैरह का मसला नहीं है? नहीं, यहाँ वहां पे तनवीन वगैरह का मसला नहीं है। तनवीन का मसला फिर अलिफ्लाम के साथ ही आएगा। अगर अलिफ्लाम होगा तो तनवीन नहीं आएगी, या फिर और मुनसरिफ वगैरह होते हैं वो फिर बाद में, उसका अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए उसकी तरफ नहीं जाऊंगा अभी। सर ये है कि अगर मुब्तदा पर तनवीन है तो फिर खबर पर भी लगानी है, तो अगर मुब्तदा पर नहीं होगी तो फिर खबर पर भी नहीं आएगी तनवीन। क्या है ये सर? मसलन आप मिसाल दीजिए कोई। जैसे अभी आपने बोला हाजा रजुलुन, हाजा ये तो इसमें इशारा है, तो इस पे मतलब तनवीन नहीं है, तो फिर आगे जो खबर है तो उस पे तनवीन आई। आप मुझे तनवीन वाला कोई इसम बताएं। जैसे ऐसे भी हम बोल सकते हैं बाबुन मफ्तूहुन। बाबुन मफ्तूहन नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? ये फिर अलग हो जाते हैं, ये वो बन जाते हैं एडजेक्टिव, मौसूफ और सिफत बन जाते हैं। ये अभी पढ़ा नहीं है आपने, अभी तक इसका नहीं आया। ये थोड़ा कंफ्यूजन रही।
बस इसमें आप यही याद रखें कि जब जी 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 मुजाफ और मुजाफ इलैह दोनों मिलकर बनेंगे तो खबर जो है मुजाफ के हिसाब से आएगी। अभी तक हमने इसमें मुब्तदा और खबर में से यही कायदा पढ़ा फिलहाल, जी सर। इसमें आप गलती ना करें। जी कोई और? देखिए ये वाली जो तमरीन है ना, ये 2 नंबर तमरीन, इसमें आप ये कोशिश करें कि फिलहाल तो इसमें जो सवाल है वो ये है कि आप मुरक्कब इजाफी बनाएं, जैसे किताबु मुहम्मदिन, तो आप कोशिश करें इससे जुमले बनाने की। मसलन किताबु मुहम्मदिन जमीलुन, मुहम्मद की किताब खूबसूरत है। कलमु हामिदिन जमीलुन, हामिद का कलम खूबसूरत है। बैतु अब्बासिन बईदुन, अब्बास का घर दूर है। दुकान ताजिर मफ्तूहन, ताजिर की दुकान खुली है। इससे आप छोटे छोटे जुमले बनाने की भी कोशिश करें, और इन जो हैं ये मुरक्कब इजाफी को, ये वाले जो यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आप सेंटेंसेस में भी यूज करने की मशक करें, ताकि आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे जुमले भी बना सकें। तो यहीं पे हम 3 तमरीनें जो हमने पढ़ी हैं, इसी के आप मशक करेंगे अच्छी तरीके से।